सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। सदियों की परंपरा रही है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो हम ईश्वर के सम्मुख शीश नवाते हैं। मैं बिना किसी विलंब के मंचासीन समस्त महानुभावों से अध्यक्ष जी से मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि वो माता काली की सिद्धपीठ पर दीप प्रज्वलन करके महापुरुषों पर पुष्प अर्चन करें और फिर दोनों सिद्धपीठों पर पुष्प अर्चन करें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी और साथ में कार्यक्रम अध्यक्ष। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपद देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते ओम दीप ज्योतिषे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप नारायण जी। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और मासिक शुभारती दिवस, जैसे कि मैंने बताया था, संस्कृति विभाग हर माह एक महापुरुष की जयंती अथवा पुण्यतिथि का आयोजन करता है और आज बाबा दीप सिंह जी का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि डॉक्टर अतुल कृष्ण सर, जो उन्मुक्त भारत के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके निर्देशन में ये विभाग हर साल, पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 3000 गरीब बच्चों को निःशुल्क जूते वितरण किए थे और 2000 बच्चों को गर्म कपड़े वितरण किए थे। And in the last but not the least, the audiences and the students who are sitting here with all eyes and all ears to be a participant in this commemorative ceremony that we are holding today, I welcome you all. It is my great privilege to be a part of this commemorative ceremony wherein we are celebrating the Martyrs' Day for Guru Tegh Bahadur Ji, Shahid Baba Deep Singh Ji, and also the anniversary of Abdul Kalam Ji, because this is National Education Day and this is also Subharati Divas for us, something about which my co-convener has already informed you that a lot of work, and that too in the realm of social welfare, is being conducted, and that took a very long time now. So we are so very proud, privileged, and also humbled by the fact that so much of work for the needy, for the people, for the underprivileged, for the people who really need our care and concern is being done through this department. We are so very proud, and we also must put our hands together for the efforts that are being made. I expect you to please honor. And Swami Vivekananda Subharati University is known nationally for the kind of services it has been rendering in the realm of social welfare, for the upliftment of the society. Today's program is particularly to commemorate, as I said, two martyrs, and of course the one who was the first education minister of the Free India. We are here to celebrate. As the speakers, we have two deans from the two schools, FASS and the School of Law. And both our speakers are very renowned, very bright, the kind of speakers, when they speak, you listen. And not just listen, you think as to what they say. And then you try to imbibe. And then you try to retain. So you not just listen to them, you also retain the information and the message they try to convey. This is something that happens every time. So it's a routine. I know that you are aware of this, what I'm talking to you about.
as the convener of Swami Vivekananda Chair in Swami Vivekananda Subharati University, I would like to take this opportunity to stress upon the fact as to Swami Vivekananda, who has been an out-of-the-box educationist, I would say, because he was so modern in his thinking that you can be really mesmerized and awestruck as to this man, and that to that long back, could hold the views that we are now implementing in the National Education Policy of 2020. And for another 10 years, like this decade, is going to be completely dedicated as to how this new education policy is unfolded and then implemented, and then the benefits of the policy are then percolated to every single recipient of our country. Whether it is about holistic education, whether it is about the education that is life skills bound education, because education is not simply about being a master of a certain subject. Education is not just about being a holder of degrees. Education is about much more. And as Swamiji very rightly said, that education is about man-making. Education is about being character-making, process. So unless and until we become a part of that process where we are trying to evolve and grow as a human, not just as a professional, as a human, then the purpose of education is served. So we don't have to see education as something which is superficial, which is at the surface, which serves only to sustain us financially. Of course, that is one major reason, but then something which is far more important, vital and paramount that lies beneath, and we must see to it, we must attend to it, and if we do that, then I'm sure that most of the problems that we are facing today will be eliminated, will vanish. Because it is about the wholesomeness of our lives. It is about the fulfillment of the lives then. If we achieve that, then the lower causes, then the lower objectives are definitely automatically on their own achieved. So Swamiji spoke so much about man-making and character-making in education. For him, education was the manifestation of perfection that already lies in man. It already lies there. I have so much to say, and I am so much tempted to share with you what Swamiji all said about education, but we have the foundations of time and we have some very good speakers waiting in line. So I would now take your leave, and I would also request my co-convener to please come and continue with the super successful way of conducting the program as he is a master of. So, sir, please take charge, and thank you so very much for being here, everybody. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिम्मी जी। और हम दोनों कन्वीनर ने ये तय कर लिया था कि आप मेरी तारीफ कर जाना, मैं आपकी कर जाऊंगा। बहुत नहीं, वास्तव में आपने जो कार्यक्रम में रूपरेखा में जो मदद की है, आप हमेशा बहुत अच्छी उद्घोषिका हैं, करती हैं। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं, सबसे जोरदार तालियां एक बार मैडम के लिए बजाएं। जिस विचारधारा को हमारे परिवार प्रमुख सुभारती की नैया के जो खिवट हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी जीते रहे हैं और जो जीना चाहते हैं, वो यही है कि हम महापुरुषों के जीवन से न केवल प्रेरणा लें, बल्कि उनसे हम अपने जीवन में उनके आदर्शों को आत्मसात करें, आत्मर्पित करें, ताकि हमारा जीवन पल्लवित पुष्पित हो सके। और मैडम ने बहुत बढ़िया बात कही कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र आपको व्यवसायीकरण की तरफ अग्रसित करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है कि आप में मानव मूल्यों का विकास हो। आइए शिक्षा की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम आज का है। महापुरुषों को याद करना, उनकी बातों को आत्मर्पित करना ही आज का उद्देश्य है। मैं आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री कुलदीप नारायण जी को कि वो संक्षिप्त में तीनों महापुरुषों के बारे में आपको बता दें। आदरणीय कुलदीप नारायण जी, तालियों के साथ। मुझे स्वामी जी की एक बात याद आती है कि जो राष्ट्र अपने राष्ट्रपितरों को भूल जाता है, 3 पीढ़ी बाद उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि स्वामी जी की भविष्यवाणी भारत के ऊपर पूरी हो, इसलिए 2008 में जब
स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो डॉक्टर अतुल जी ने, और उनकी ये परिकल्पना, मेरे तो उनके 30 वर्ष के संबंध रहे हैं, तो ये परिकल्पना वो शुरू में भी कहते रहे। और जब ये सुभारती यूनिवर्सिटी बनी तो 2009 में जब मैं आया तो हम लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और शायद राष्ट्र का कोई प्रांत ऐसा हो जिसमें उन चुने उन महान पुरुषों को हमने स्मरण न किया हो, उनको अपनी यूनिवर्सिटी में स्थान ना दिया हो। संक्षिप्त में, क्योंकि हम हर महीने किसी न किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि करते, बहुत गिनती के कुछ महापुरुषों के विषय में मैं उनको स्मरण करूंगा, उनके चरणों में नमन करूंगा। 19/11/1830 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। 30 नवंबर 1858 सर जगदीश चंद्र बसु का जन्म। आप उन्हें जानते हैं कि वो वैज्ञानिक थे और महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी को स्मरण कर रहा हूँ। 17/11/1928 में उनका निधन हुआ। और इसके अतिरिक्त नेताजी सुभाष चंद्र बसु के राजनीतिक गुरु देशबंधु CR दास 5 नवंबर 1870 में उनका जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त आज 11 नवंबर 1888 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है, जो आज हम मना रहे हैं। इसके अतिरिक्त 15 नवंबर 1450 में गुरु नानक देव जी की जयंती होती है। इसके अलावा आज 11 नवंबर 1670 में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस, जो आज हम मना रहे हैं। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको कुछ बताया। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको महापुरुषों बारे तो सब सर्वप्रथम मैं स्मरण कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ गुरु तेग बहादुर जी महाराज को। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पिता गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज, उनके वो पुत्र थे। और प्रातः स्मरणीय महान शहीद गुरु अर्जुन देव के पौत्र थे। जब वो बहुत छोटी उम्र के थे तो उनके पिता ने उनको नेजा यानी कि एक प्रकार की तलवार जो बड़ी वजनी होती उसको चलाते हुए देखा। उन्होंने उनका नाम रखा तेग बहादुर। उसके बाद उन्होंने भारत का भ्रमण किया। भारत के भ्रमण के बाद उन्होंने पटना में एक महाविद्यालय खोला। और उसके बाद मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको, 2-2 4-4 लाइन उनके विषय में। और उसके बाद में कुछ कश्मीर पर जब अत्याचार आरंभ हुए मुगलों के, तो उस समय कुछ कश्मीरी ब्राह्मण उनके पास आए और उससे कहा, गुरुजी हमारी प्राणों की रक्षा करें। तो उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली आगरा जाओ और औरंगजेब से कहो कि यदि वो मुझको धर्म से परिवर्तित करा सके तो हम सब लोग भी कर लेंगे। वो लोग उनके बाद गए, लेकिन अंत में गुरु तेग बहादुर जी को अपना बलिदान देना पड़ा। चांदनी चौक के, आज वहाँ फुवारा बना हुआ वहाँ पर। और जब उनके मृत शरीर की हथेली को खोला गया तो उसमें पर्चा लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि सर दिया लेकिन धर्म नहीं दिया। ऐसे महान बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में सुभारती विश्वविद्यालय नमन करता है। अगले एक और शहीद महापुरुष के विषय में बताऊंगा, बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को अमृतसर में हुआ। वो एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ। जब वो 8 साल के थे तो उनके माता पिता उनको पटना साहब ले गए। और पटना साहब में उस समय हमारे प्रातः स्मरणीय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय मौजूद थे। उन्होंने उनके दर्शन किए। उनके माता पिता तो वापसी आ गए, लेकिन वो बाबा दीप सिंह, जो बाबा दीप सिंह कहलाए, वो बालक 8 साल का बालक दीप सिंह, वो वापसी नहीं आया। और वो कई महीने तक उनके पास रहा, उनसे शिक्षा लेता रहा। अंत में फिर वो बाबा दीप सिंह फिर अपने घर आए और वहाँ आकर उन्होंने सिख पंथ का उन्होंने प्रचार आरंभ किया। लेकिन तभी जो कुछ अत्याचार अनाचार हो रहे थे, और वर्तमान में जो आज श्री हरिमंदिर साहब है उसको तोड़ दिया गया था, जो उसका तालाब था उसको भर दिया गया था। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए उन्होंने 18 शेर का यानी कि लगभग 18 किलो का मान के चले, उन्होंने एक नेजा उठाया यानी कि तलवार, और उसके नेतृत्व में हजारों
जो सिख पंथ के सैनिक थे उनके नेतृत्व में इकट्ठे हुए और उसके बाद में उन्होंने आतताइयों का मुकाबला किया और अंत में वो 11 आज ही के दिन 11 नवंबर को उन्होंने फिर अपना शरीर छोड़ दिया। उनके बारे में एक बात बड़ी अजीब व गरीब है कि जिस समय उनका सर काट दिया गया तो एक हाथ में उनका सर था और दूसरे हाथ में वो नेजा चला रहे थे और अंत में जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये श्री हरमिंदर साहब को मुक्त करूंगा, अपना शीश चढ़ाकर वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। ऐसे महान बाबा दीप सिंह जी के शीश चरणों में संस्कृति विभाग अपना नमन करता है। अंतिम महापुरुष मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका जन्म 1888 में मक्का में हुआ था और जिस समय वो 8 साल के थे तो उनके पिता मक्का से पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में आ गए। जब वो 8 साल के थे तो वो शायरी करने लगे थे। उसके बाद में उनकी जो रुचि थी वो पत्रकारिता की ओर बढ़ी और उन्होंने अल हिलाल नाम का एक अखबार चलाया। 1942 में बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में वो उसके अध्यक्ष बनी और 1912 में वो कांग्रेस से पहली बार वो जुड़े और उसके बाद में उन्होंने अखबार के साथ साथ उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको भारत का शिक्षा मंत्री उनको नियुक्त किया और उसके बाद में 22 फरवरी 1958 को उनका देहावसान हुआ। वो उस समय इतने बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे कि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष और भविष्य में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली इस देश के अंदर हो, इस प्रकार की पूरी परियोजना मौलाना कर चुके थे। आज उनकी जयंती पर उनके श्री चरणों में संस्कृति विभाग नमन करता है। बहुत 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 ही सारगर्भित तरीके से परमादरणीय कुलदीप नारायण जी ने महापुरुषों के बारे में बताया और वास्तव में मुझे लगता है जो ज्ञान, जो गूढ़ता, जो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति अभी तक आप में श्री कुलदीप नारायण जी है वो बहुत कम लोगों में होती है। और ये बात ये नहीं है कि गुलशन कितना रोशन है, बात ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये जो गुलशन रोशन है, बात ये कि सींचा किसने है, उसके जो सिंचैया है वो आदरणीय कुलदीप नारायण जी। एक बार जोरदार तालियां। फिर मैं कार्यक्रम की श्रृंखला में बिना किसी विलंब के आगे बढ़ता हूं और मैं यहाँ पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ उनके साथ मेरा विश्वविद्यालय में तो कार्य अनुभव है ही, साथ ही नौचंदी मेला हर साल लगता था, उसमें रेस्पेक्टेड सर निरीक्षक होते थे, मैं मेला प्रभारी होता था। जिस आत्मीयता के साथ हमने वो सेवा की मैंने, तो मैं सर झुका के बहुत सम्मान के साथ नाम लूँगा कि वो आएँ और छात्र जीवन पर महापुरुषों का परिचय उस विषय में अपने विचार रखें। डॉक्टर वैभव गोयल भारतीय जी, आपकी तालियों से। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, भाई नीरज जी, सिमी मैडम और मेरे अनुज विवेक जी और मेरे प्यारे साथियों, छात्र जीवन पर इन महान विभूतियों का प्रभाव या हम ये कहें कि हम क्या सीखते हैं उससे थोड़ा सा अलग मैं बात करूँगा। हम यहाँ पर बैठे हैं, बात हो रही है सुभारती दिवस मनाने की। कुलदीप नारायण जी ने नवंबर महीने से रिलेटेड जो हमारे सुभारती दिवस हैं उनके बारे में बताया, 3 महापुरुषों के जीवन व्रत के बारे में संक्षेप में आप लोगों को बताया। छात्र यहाँ बैठे हैं, मैं वहाँ बैठा देख रहा था कि बड़े नीरस चेहरे हैं और कुछ छात्र ही ऐसे मुझे दिखाई दिए जो तल्लीनता से सुन रहे थे। जो हमारे सुभारती के जिसे कहूँगा कि रचेता हैं, प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं, बहुत सारे काम हैं, आखिर उन्होंने क्यों सोचा होगा कि सुभारती में इस तरीके से सुभारती दिवस मनाए जाएं? क्या आपको लगता है आपके लिए कोई फ़ायदा है इन सुभारती दिवस का? कोई बताएगा? एनी वन ऑफ यू? हिमांशु, बैठ के बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उससे क्या फ़ायदा होगा? मैं बार बार याद करता रहूँ, बहुत सारी चीज़ों को दूसरों को मैसेज भी देता रहूँ, फ़ायदा क्या होगा? बिना फ़ायदे के कोई आदमी कोई काम नहीं करता। आपको मालूम पड़ जाए कि बिना रोटी खाए जीवन में बहुत सारा आगे निकल जाएंगे, और बिना पढ़े हम बहुत मतलब समृद्ध और एक स्टेटस वाले बन जाएंगे, तो हम वो सारे काम नहीं करेंगे। फ़ायदा क्या होगा? बिना फ़ायदे के थोड़ा कुछ। हाँ, जो उनके अच्छे गुण हैं हम मतलब जानते कि और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। चलिए, इन्होंने कुछ अच्छी बात की, इनके लिए तालियां बजा दी जाए। इससे कुछ अलग, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है और मैं एक शिक्षक हूँ। एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ। जिस चीज़ के अंदर कुछ सीखने को नहीं होता, सीखने को मतलब ये नहीं आपने कह दिया उनके गुण टीचिंग से रिलेटेड, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड, मेरे कैरियर से रिलेटेड, अगर यदि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं नहीं सीखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ सीखने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। क्या आप लोगों को अपने कैरियर और फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज़ मिली? बस यही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, तंजील। जिस तरीके से अभी सर ने कहा था कि वो जो मुगल शासक में वो जो थे उसको धर्म वो नहीं छोड़े, जब उसका गर्दन अलग हो गया। यहाँ से एक चीज़ ये सीखने को मिलता है कि सर जिस तरीके से हम लोग स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो मेरा कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम पढ़े और किसी और रास्ते पर आए। चलिए, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। इनसे अलग 4 जीके के वो क्वेश्चनों के जवाब यहाँ मिले हमें जो बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेंगे। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और उस ज़माने में मेरे साथ के लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी किया करते थे, और जो इतिहास की किताबें हुआ करती थी मार्केट में बहुत अच्छी नहीं आया करती थी, ढूंढते थे, और ढूंढने पर कुछ ऐसे पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम में जो इतिहास विषय होता था उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे जिनका जवाब किसी भी किताब में नहीं मिलता था। हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी सुभारती दिवस हैं और उनकी जो जीवनियाँ हैं, यदि हम यहाँ पर आकर उनके बारे में मालूम करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। आज अगर यदि बात करी जाए तो चूँकि हम विश्वविद्यालय से संबंधित रखते हैं, एजुकेशन दिवस की बात है और छात्र जीवन में प्रभाव की बात आती है, तो शुरू करूँगा मौलाना अबुल कलाम जी से। लगभग 10 साल इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा मंत्री के रूप में हिंदुस्तान को दिए, और इस 10 साल के अंदर की क्या उपलब्धि थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया। मेरे ख्याल से हम यूजीसी के अंदर डिग्री प्राप्त करते हैं और विश्वविद्यालय हैं, तो मुझे लगता है कि उनका छात्र जीवन में एक अलग ही योगदान है। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया, इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन बनाया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन AICTE। कहने का मतलब ये 4 तो वो बॉडी जो इन्होंने बनाई, उसके साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया और IIT खड़गपुर। कई बार आपको जीके के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे कि इन चीज़ों को किसने बनाया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कंट्रीब्यूशन रहा। हमारे ज़माने में कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे भी आते थे, मुझे लगता है अब भी आते होंगे, और उसके अंदर एक बल्कि 10th और 12th में क्वेश्चन आता था, अगर यदि मैं प्रधानमंत्री होता, अगर यदि मैं राष्ट्रपति होता, तो अगर यदि हम अपना समग्र विकास चाहते हैं, मैडम ने एजुकेशन की बात कही, किताबी ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। संपूर्ण ज्ञान के अंदर हमारा सामाजिक ज्ञान, हमारा किताबी ज्ञान और उससे पहले हमारा इतिहास। अगर यदि हम अपने इतिहास को नहीं जानते तो हम खुद को नहीं जान सकते। अगर यदि मुझे खुद को पहचानना है तो मुझे इतिहास मालूम होना चाहिए। और इतिहास में जब मैं जाता हूँ तो जैसे कि आज गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस, सिखों के नवे गुरु के रूप में इन्हें माना जाता है, और दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में जो शीशगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज साहिब, वो इसीलिए है क्योंकि चांदनी चौक में जब इनका शीश गिरा, इन्होंने अपना सम्मान नहीं खोया, शीश गंवा दिया। तो वहाँ पर अगर यदि हम बात करें कर्तव्य परायणता, धर्म क्या है? धर्म धार्यते, जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। बिल्कुल सही बात कही तंजील ने कि भाई जो हमारा उद्देश्य है यहाँ पर आने का वो पढ़ने का है। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगर यदि आप लॉ में हैं तो आपका मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ए स्किल्ड लॉयर।
If you are in mass communication, then you are expected to be a skilled journalist. If you are a student of Faculty of Art and Social Science, then you are expected to be a good artist, a good bureaucrat, a good leader. In whatever discipline you are expected to do justice with your studies first. आपके माता पिता आपके ऊपर जो भी व्यय कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं या आपसे जो अपेक्षाएं उनको आपसे पैसा नहीं चाहिए. ये जो समय आपको दिया गया है, उस समय के अंदर अगर यदि आप वो कर पाते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, तो उनका वो सपना पूरा हो जाएगा जो उन्होंने आपके पैदा होने के समय देखा होगा. अगर यदि आप उस सपने को देखकर जिंदगी जिएंगे तो आप अपने जीवन के साथ न्याय कर पाएंगे. जहाँ तक बात शहीद बाबा दीप सिंह जी की है, वैसे मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन अक्सर मुझसे कहते हैं कि वो मेरे छोटे भाई हैं, कुलदीप नारायण जी. तो वैसे तो मैं बड़े का सम्मान देता हूँ, उन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बड़ी बात, 75 वर्ष की उम्र थी उनकी जब गुरु हरमिंदर साहब, जो इस समय गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे के रूप में, वहाँ पर जब परेशानी थी, जब वो लड़ाई लड़े 15 किलो 18 से 15 किलो की तलवार लेकर 75 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी. लड़ते लड़ते जब उनका शीश अलग हो गया और जब वो गिरने लगे तो वहाँ पर जो उनके साथी थे, ये कोई किंवदंती या कहानी नहीं है, उन्होंने याद दिलाया कि आपने कहा है कि मैं गुरु हरमिंदर साहब की रक्षा करूँगा. और कहते हैं कि जब आदमी, आप समझ जाइएगा कि अगर यदि आपने देखा होगा ना, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, तो बायोलॉजी में जैसे बताते हैं, आपने देखा होगा लिजार्ड छिपकली होती है, अगर उसकी पूंछ भी अलग होती है तो काफ़ी समय तक उसके अंदर छटपटाहट और जो ब्लड का सर्कुलेशन रहता है उस कारण प्राण रहते हैं. उसी तरीके से जिस समय उनको जो भी चीज़ें नहीं कहा गया कि भाई उनको याद दिलाया गया, तो वो धड़ से सिर अलग होने के बाद जब वो गिरने लगा, उन्होंने सिर को अपने हाथ में लिया और वो काटते हुए, और जिस तरीके से बिना धड़ से वो काट रहे थे, बिना धड़ के होते हुए दुश्मनों के ऊपर तलवार चलाते हुए मार रहे थे, लोग डर के पीछे भाग गए. लोग समझ ही नहीं पाए वहाँ पर क्या है, और अंत में उनका जो सिर गिरा और जो वो उनका धड़ गिरा, वो जो वर्तमान में टेम्पल है वहाँ पर गिरा. कहने का मतलब अगर यदि हम छात्र जीवन के या एक युवा के ऊपर इनके महत्व को देखें, तो पहली चीज दृढ़ निश्चय. अगर यदि आपका निश्चय दृढ़ है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती. एक व्यक्ति जिसका सिर धड़ से अलग हो गया लेकिन उसके पास एक दृढ़ निश्चय था, तो उसके बावजूद भी उसने उस निश्चय की प्राप्ति कर ली. चांदनी चौक, जिस समय औरंगजेब और वो लड़ाई चल रही थी, उस समय आज की तारीख में चांदनी चौक के अंदर यदि नाम मिलता है तो वहाँ पर आप चले जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी का, आशीषगंज साहिब जी का मिलता है. कहने का मतलब उनका भी एक दृढ़ निश्चय था. 1920 के अंदर जिस समय मौलाना आज़ाद साहब, उन्होंने कांग्रेस के अंदर कदम रखा और सेकुलरिज्म के थॉट को उन्होंने इंडिया के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की. 1940 से 45 तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे. उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान के अंदर यदि शिक्षा को आगे लेकर आना है, तो पहले हमारे बीच में जो धार्मिक कहना चाहिए अलगाव है, उसको दूर होना चाहिए. तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कोशिश किया जो कम्युनल हार्मनी डेवलप करने के लिए. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे बीच में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन नहीं है. लेकिन अगर यदि हम वोट डालने जाते हैं, जिस समय हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर की बात करते हैं, उस समय हम जाति और धर्म में बढ़ जाते हैं. और अगर यदि हम किसी भी समय जाति, धर्म या वर्ण में बढ़ते हैं, तो उस समय हम अशिक्षित हो जाते हैं. क्योंकि शिक्षा का मतलब है जोड़ना, शिक्षा तोड़ना नहीं सिखा सकती. कोई धर्म, कोई मजहब, कोई विचारधारा जो तोड़ना सिखाता है, वो कम से कम इस विश्व में तो मौजूद नहीं है. और अगर ये किसी भी नेता, किसी भी पार्टी ने आप लोगों से ऐसा कहा, तो ये तय है कि वो आपको खत्म कर देना चाहता है.
सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर अगर यदि आप शिक्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब है शिक्षा के साथ सेवा और संस्कार। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर हर धर्म से रिलेटेड, हर धर्म से जुड़े हुए लोगों को वही सम्मान दिया जाता है जो उस शहीद को, उस प्रणेता को, उस विचारधारक को मिलना चाहिए। अगर यदि सही मायनों में अगर यदि मैं बात करूं विधि के विद्यार्थी के रूप में, जो हमारा संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, तो वो चीज़ मैंने सुभारती के अंदर देखी है। अगर एज ए टीचर मैं बात करूं तो मैंने देखा कि बच्चों की रिक्वायरमेंट, उनका कोई भी रिक्वायरमेंट हो एजुकेशन, चाहे बुक्स का रिक्वायरमेंट हो, फैकल्टी का रिक्वायरमेंट हो। अगर यदि हमने देखा हमारे कॉलेज के अंदर, आपने देखा होगा आज की तारीख में अलग अलग कॉलेज के अंदर लिफ्ट और रैंप का मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कारण क्योंकि अगर यदि हमारे यहाँ पर एक दिव्यांगजन अध्ययन केंद्र बना, स्पेशली वन स्टडी सेंटर फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स, तो मीनिंग दे भाई यूनिवर्सिटी के मतलब जो मैनेजमेंट है, जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा पहले बच्चे आएंगे तब हम काम करें। उन्होंने स्टार्टिंग से ही उस मुहिम को लिया और उन्होंने कहा कि यदि आज हमने केंद्र बनाया है तो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर वो विकास होना चाहिए। दिस यूनिवर्सिटी इज वर्किंग फॉर योर अपलिफ्टमेंट इन ए व्यू टू कीप यू रिमाइंडेड द वैल्यूज ऑफ अवर लीडर्स इन अवर हिस्ट्री। अगर यदि आप इतिहास के अंदर जो हमारे लीडर्स रहे हैं हम उन्हें याद करेंगे, उनके विचारों को याद करेंगे, तो आगे भविष्य के अंदर कोई भी ताकत हमें हिला नहीं पाएगी। कहा गया कि हिंदुस्तान के ऊपर बड़े बड़े आक्रमणकारियों ने हमले किए, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता ऐसी थी, हिंदुस्तानी शिक्षा का वो स्तर था कि कोई भी आतताई हिंदुस्तान को हिला नहीं पाया। लेकिन आज की तारीख के अंदर अगर यदि हम खंड खंड में बढ़ जाएंगे, आपस में विखंडित हो जाएंगे, तो वास्तव में आने वाला समय हमारा नहीं होगा। अगर यदि हमें भविष्य में हिंदुस्तान को और अपने वर्चस्व को बना के रखना है तो अपने इतिहास को याद रखना होगा। और जो सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर हमारे सुभारती दिवस हैं उनको इसलिए याद रखना होगा कि जो विचारधारा हमारे सुभारती के प्रणेता ने सुभारती को बनाने के साथ सोची थी, वो 2021 के अंदर यूजीसी के द्वारा आज अब इम्प्लीमेंट करी गई। और लगभग 15 दिन पहले एक हमारे पास लिस्ट आई और उस लिस्ट के तहत कहा गया कि आपको इनमें से कुछ दिन मनाने हैं, हर कॉलेज को कुछ कुछ दिन मनाने हैं। विश्वविद्यालय कॉलेजों को काम देगा और वो हर रोज कोई ना कोई दिन बनाएंगे, यानी कि हर 365 दिन का हर एक दिन किसी ना किसी महापुरुष के नाम पर विश्वविद्यालय को मनाना है। ये यूजीसी ने 2021 में सोचा है। तो आप सोचिए, आपका विश्वविद्यालय हमारा जो वर्तमान शासन है उससे थोड़ा सा पहले की सोच रखते हुए, आपके विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। तो आपको इस दिशा में अपने इतिहास को याद रखते हुए आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूँ विवेक संस्कृति जी का कि उन्होंने मुझे याद करा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यदि आप इनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इन तीनों में से अगर यदि आपने किसी एक भी महापुरुष की किसी एक भी अच्छी बात को अपने जहन में उतार कर अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, तो आज का सुभारती दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाने का हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातें यहाँ पर रखी। क्योंकि प्रसाद वितरण भी होना है, 10 मिनट का मात्र कार्यक्रम शेष है। हम एक उद्बोधन के बाद सीधे अपने अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि को सुनेंगे। मैं आपकी तालियों के बीच जिन्हें देखकर बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी उद्घोषणा में सीखता हूँ, जो सह उद्घोषक के साथ साथ एक बहुत अच्छे मित्र, एक बहुत अच्छे प्राचार्य हैं। आपकी तालियों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर नीरज किरण सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और विचार। हृदय से आभार। तैयारी मैं भी बहुत कुछ कर आया था कि कुछ बात होगी, लेकिन थोड़ा सा विषय बदलने की कोशिश करूंगा। तत्कर्म अन्न बंधाए सा विद्या या विमुक्ते आया साया परम कर्म विद्या ने शिल्प ने पुण्यम। इसका अर्थ बताते हुए मैं नमन करता हूं हमारे बीच में जिस शख्सियत का सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे सैन्य अधिकारी के रूप में हमारे कुलपति जी, मैं उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए डॉक्टर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान
डॉक्टर गंभीर जी, जो गंभीर काव्य के रचनाकार हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। वक्ता के रूप में मेरे बड़े भाई वैभव जी और शोधपीठ की समन्वयक सिमी जी को नमन करते हुए संस्कृति विभाग के इस पूरे विभाग के प्रमुख विवेक संस्कृति जी, इतिहास मर्मज्ञ हमारे बीच में कुलदीप नारायण जी, स्नेहिल विद्यार्थी और मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में श्रमिक बहनें विराजमान हैं, उनको नमन करते हुए तत्कर्म अन्न बंधाए सा विद्याय विमुक्ते आया साया परम कर्म विद्या ने शिल्प ने पुण्यम, जो विषय दिया गया उस पर बात करेंगे कि विद्या वही जो मुक्त करे और कर्म वो जो बांधे ना। बाकी जितने कर्म हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिल्पकारी हैं। कर्म वो जो बांधे ना और विद्या वो जो मुक्त करे। मुक्त करी विद्या, भारतीय दर्शन की जब बात करते हैं तो मुक्त करी विद्या की बात होती है। भारतीय दर्शन की बात होती है तो ऐसी विद्या की बात किए जाने की आवश्यकता है जो जय जगत और सार्वभौमिक दृष्टिकोण का निर्माण कर सके। इसलिए जब भारतीय इतिहास के साथ साथ में जब इस विश्व के इतिहास को पढ़ा जाता है तो बिफोर क्राइस्ट और एनाटॉमी को पढ़ा जाता है। इसको इतिहास को ऐसे डिफाइन किया जाता है। जब भारतीय इतिहास को आप पढ़ते हैं तो आजादी से पहले का एक इतिहास और आजादी के बाद का इतिहास, और जब जब शिक्षा की बात होगी विद्यार्थियों, तो मैं मानता हूं ये मेरा व्यक्तिगत निजी दृष्टिकोण है सर कि एक गूगल से पहले की शिक्षा व्यवस्था थी और एक गूगल के बाद की शिक्षा व्यवस्था होगी। इसको और आप डीपली देखना शुरू करेंगे तो एक पाएंगे कि एक ऑनलाइन शिक्षा से पहले की शिक्षा व्यवस्था थी और एक ऑनलाइन के बाद की शिक्षा व्यवस्था है, जिसको हम सब देख रहे हैं, भोग रहे हैं। और एक चिंता व्यक्त कर रहा हूं मैं, तो मेरे व्यक्तिगत आप व्यूज लेंगे तो इसमें पाएंगे कि मैं बड़ी चिंता व्यक्त कर रहा हूं कि आगे होने वाले क्या है। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय में जब इन विषयों पर चर्चा होनी शुरू हो तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात होती है। तो पश्चिम और भारतीय शिक्षा व्यवस्था दोनों में बड़ा अंतर। 1834 में मैकाले जब आते हैं यहां पर, एक शिक्षा व्यवस्था उससे पहले की थी और एक शिक्षा उससे व्यवस्था के बाद की थी। और जिस वक्त आते हैं और उसमें आकर भारत में व्यवसायिक शिक्षा को प्रतिपादित करते हैं तो आप पाएंगे कि उस दौरान कितने आचार्य और कितने गुरुकुल थे भारत के अंदर। 35,567 गुरुकुल, आज कितने हैं? 34। तो क्या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी या उसके बाद में मैकाले के बाद की जो व्यवस्था थी वो पेशेवर शिक्षा व्यवस्था को लाद दिया गया? आज जिस शख्सियत को हम यहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद कर रहे हैं, वो उन्होंने उस शिक्षा व्यवस्था को, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मूल में लाकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसलिए साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी का भी स्टैब्लिशमेंट करते हैं वो इन व्यवसायिक संगठनों के साथ साथ में। इन व्यवसायिक संगठनों के साथ साथ में उन्होंने कला को भी महत्व दिया और भारतीय बोध को महत्व दिया। इसलिए ईश्वरीय संकल्पना देखिए, आप ईश्वरीय संकल्पना देखिए कि हमारे पूरे शरीर के अंदर सभी अंग 2 हैं, लेकिन 5 ऐसे अंग हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को संप्रेषित हैं। वो ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख देखकर, कान सुनकर, नाक से सूंघकर, मुंह से बोलकर, त्वचा से महसूस करके। 5 ज्ञानेंद्रियां। बहनों के बाद में छठी एक और होती है, किसी भी अच्छे बुरी नजर को भी पहचान लेती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 24 घंटे 7 दिन किस काम में लगी हुई हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियां सूचना ग्रहण कर रही हैं 24 घंटे 7 दिन। वो 24 घंटे 7 दिन केवल सूचना ग्रहण कर रही है, चाहे व्यक्ति सो रहा है या जाग रहा है। ये भारतीय ज्ञान व्यवस्था की बात कर रहा हूं, जिसको जो विषय मुझे दिया गया है कि वो भारतीय ज्ञान व्यवस्था क्या है या शिक्षा का जीवन में क्या महत्व हो सकता है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी के पास में अगर कोई शिक्षा आई तो वो सूचना के रूप में आई, 24 घंटे 7 दिन के रूप में। और जितनी सूचनाओं को अभी आपने जितनी बातचीत हो रही है उसमें से कुछ रिटेन करेंगे और कुछ भूल जाएंगे। जो रिटेन करेंगे उनके 4 पैरामीटर हैं। पहला साइकोलॉजिकल, दूसरा सोशियोलॉजिकल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। ये फ्रेम है। इन फ्रेम के इर्द गिर्द जैसे अनुभव हमारे रहे हैं, वो जो हमारे इन 4 फ्रेम के अंतर्गत सूचनाएं हमें प्राप्त हुई उन्हें तो हम प्राप्त करेंगे, बाकी वो सबको छोड़ देंगे। रिटेनिंग पावर, सूचना को रिटेन करके आपने जब रिटेन कर लेंगे, जितनी प्रतिशत सूचनाओं को आप रिटेन करेंगे वो आपका एक अलग प्रतिरूप बनेगी। वो किस रूप में बदल जाएगी? आपके ज्ञान के रूप में। सूचना
जिसको रिटेन किया वो आपका ज्ञान बन गया। तो ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर? ज्ञान और शिक्षा में एक बहुत बड़ा अंतर है। यही सीख कर आज आप जाएंगे। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन ज्ञान और शिक्षा के बीच में क्या अंतर है? क्या शिक्षा वही जो डिग्री हासिल कर ले? क्या शिक्षा वही जो प्रतिशत हासिल कर ले? क्या शिक्षा वही जो मार्कशीट में के रूप में हो? क्या शिक्षा वही जो कोई पेशे को अडॉप्ट करने के लिए आगे बढ़ाए? या शिक्षा कुछ और है? तो ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर हुआ? तो संचार का सिद्धांत एक प्रतिपादित किया। उस संचार के सिद्धांत में ज्ञान और शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है, जो हम सब के लिए हमेशा रहा है, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। वो ज्ञान और शिक्षा के बीच में एक जो धुरी है वो है इस्तेमाल, सही इस्तेमाल। ज्ञान का सही इस्तेमाल शिक्षा है। कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ नॉलेज इज एजुकेशन। यह भारतीय ज्ञान व्यवस्था। और जब हम अपनी ज्ञान व्यवस्था को रोक कर जब पश्चिम की ज्ञान व्यवस्था की ओर जब जाते हैं, तो स्कूल, पाठशाला या विद्यालय, इन शब्दों के जाल को देखिए आप। मैं तो पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं, मैं तो कोशिश करता हूं कि किस तरह से शब्दों को गढ़ा गया है, मढ़ा गया है। एक और शब्द गढ़ दिया गया इसी कोरोना काल में। अगर कुछ और नहीं संस्थापित हुआ इस कोरोना काल के अंदर, तो एक चीज होगी, इम्यूनिटी। मतलब तेल भी पी लीजिए तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं। आप धारा का तेल पीजिए या विधारा का तेल पीजिए, ये तेल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। कितना सही है? विज्ञान के विद्यार्थियों से पूछ लीजिए कितना सही होगा। क्या सब चीजें इम्यूनिटी? सबसे ज्यादा अगर किसी ब्रांड को स्टैब्लिश किया गया है या किसी शब्द को स्टैब्लिश किया गया है इस दौरान, तो वो है इम्यूनिटी। इसके अलावा मास्क, इसके अलावा सैनिटाइजर। अब इसमें आप भारतीय परिवार की व्यवस्था को देखिए। आज दोबारा पूरा विश्व जो है उसी व्यवस्था पर आने की कोशिश कर रहा है, जो भारतीय व्यवस्था थी उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर निकलने से पहले ढाटा बांधकर महिलाएं निकला करती थी, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। इससे पहले हमारे बुजुर्ग जो है अपनी साफा पहनकर उसके बाद में मुंह पर साफा बांधकर चला करते थे। घर में आने से पहले के घर से बाहर के एक पादुकाएं हुआ करती थी, घर के अंदर की पादुकाएं हुआ करती थी। सारी व्यवस्थाएं आप समझते हैं। वो ज्ञान कहां जा गया जो जगत की बात करने वाला था? वो ज्ञान कहां गया जो सार्वभौमिक दृष्टिकोण के साथ था, जो समावेशी था, जो सबको समाहित करने की बात कर रहा था? इसलिए जितने भी आक्रांता हैं उन्होंने भारत को सबसे बड़ा केंद्र माना। और उसके बाद में क्या हुआ? शिक्षा का ह्रास। सबसे ज्यादा कुठाराघात किसी व्यवस्था पर हुआ है, किसी चीज पर हुआ है, तो वो शिक्षा पर हुआ। नहीं तो इससे पहले महर्षि संदीपन ने भगवान कृष्ण को ज्ञान दिया है 64 कलाओं का। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को ज्ञान दिया है कलाओं का। उसके बाद क्या हुआ? क्या सभी मूर्ख थे? उसके बाद में जितने भी लोग थे जो स्कूल में नहीं गए हैं, वो क्या मूर्ख थे? या कोई और व्यवस्था थी? वो व्यवस्था क्या थी? उसके बारे में जानकारी कितनी? तो वो आश्रम व्यवस्था थी, वो गुरुकुल व्यवस्था थी। वो आश्रम गुरुकुल व्यवस्था को मैकाले खुद कहते हैं। मैं एक कोट आपके सामने पढ़ना चाहूंगा मैकाले का। वो क्या कहते हैं कि एक यूरोपीय देश में पुस्तकालय में जितना ज्ञान है, उतना भारत की जानकारी को इकट्ठा किया जाए तब भी पूरा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। तो जो शिक्षा व्यवस्था यहां पर कायम करने की पूरी कोशिश की गई, उसका जो जनक व्यक्ति था वो खुद कह रहा है इस बात को। तो आप सोचिए कि स्कूल को स्कूल कह दिया गया। हमारे यहां क्या था? विद्यालय। विद्या से जुड़ा हुआ शब्दों के हेरफेर को देखिएगा। स्कूल का क्या संबंध, क्या शिक्षा से है, क्या पठन पाठन से है, प्रशिक्षण से है? स्कूल क्या है? शब्दों का समुच्चय है, केवल कुछ वर्णों का समुच्चय स्कूल है। अब कॉलेज देखिए, कॉलेज क्या कोई सीधा शिक्षा से संबंधित कुछ उसका जुड़ाव है? लेकिन महाविद्यालय का है, ऐसा विद्यालय जो महाशिक्षा आपको देगा। अब आप देखिए विश्वविद्यालय, जैसा हमारा विश्वविद्यालय है। अब विश्वविद्यालय का मतलब क्या? आप यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, शब्द का सीधा संबंध शिक्षा से जोड़ के देखिए, प्रशिक्षण से जोड़ के देखिए, प्राप्त नहीं होगा कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन जब आप भारतीय शब्दावली की बात करेंगे तो पाएंगे कि विश्व स्तरीय शिक्षा देने वाला विद्यालय विश्वविद्यालय। यह दृष्टिकोण भारत के अंदर भारतीय शिक्षा को नष्ट करके एक अलग शिक्षा व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। और जब
भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात होती है, एक छोटे से एग्जाम्पल के बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि पश्चिम की शिक्षा हमारे ऊपर थोपी गई है। हमारी संस्कृति को कल्चरल इंपैरिज्म के रूप में, कल्चरल इंपैरिज्म का मतलब है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, बड़े आराम से शने माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से हम सब तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए एक एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, विज्ञापन आपने देखा होगा कि एक माँ जो है वो अपने बेटे के साथ में बैठी हुई है। बेटा कहता कि अब मेरी शादी हो जाएगी, तो माँ कहती है अब तो मेरे से दूर हो जाएगा। मतलब ये है कि बेटे की शादी का मतलब ये है, माँ पहले से तैयार है कि अब ये दूर हो जाएगा, लेकिन घर आसपास ले लियो। तो बैंक कहता है कि आपके अपने घर को बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, हमसे लोन ले लीजिएगा। ये व्यवस्था है, ठीक है। ये वो शनि उपकरण जो बना दिया गया है पूरी भारतीय संस्कृति के मूल को, उस पर आपको सबको, हम सबको सोचने विचारने की आवश्यकता आज से, अभी से और यहीं से है। इसलिए इस तरह के जो सत्र हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमें किस ओर जाना है। तो पश्चिम की जब बात करते हैं तो हमें भोग की शिक्षा व्यवस्था मिलती है कि 6 महीने काम करो और 6 महीने जो है सिर्फ और सिर्फ भोग कीजिएगा। एक दिन काम करो, दूसरे दिन भोग कीजिएगा। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या है? योग की। पश्चिम भोग की, भारतीय योग की। योग मेरा और आपके साथ। योग हमारे दृष्टि का, स्नेह का, आत्मसात करने का, धर्म का, दायित्व का योग, कुल से गुरुकुल का योग, ये योग है। ये योग की व्यवस्था जो भारतीय व्यवस्था थी, इसको छोड़ दिया गया है। और हम जब इस तरह के सत्रों में बैठते हैं तो ये सीख कर हम लोग जाएं कि हमें योग की शिक्षा पर ज्यादा बल देना है। जब बहनें आई तो उनका स्वागत करना है, उनको स्वीकार करना है कि जब हमारे बीच में, या उनको ये करना है कि उनके पसीने जो खुशबू जो आ रही है वो दुर्गंध है या खुशबू है। तो ये तो सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ये जब तक आपके अंदर योग की शिक्षा नहीं होगी तब तक तो ये लगेगा कि ये अलग है, ये हम अलग हैं, हम अलग व्यवस्था से आए हुए हैं, ये अलग व्यवस्था से आए हुए हैं। ये भाषासार्वभौमिक दृष्टिकोण जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का था वो नहीं होगा। इसलिए अंतिम कर रहा हूं, अपनी बात को कह रहा हूं कि जागरण व्यक्ति आधारित है, जागृत होना व्यक्ति आधारित है। अगर कोई दूसरा जब तक आपको नहीं कहेगा ऐसा, आप खुद जागरण होगा तभी वो फ्रूटफुल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जागरण व्यक्ति आधारित है, जन जागरण समाज और लोक आधारित है। जब जन जागरण की बात होगी, पुनर्जागरण सुप्त पड़ी व्यवस्था, सुप्त पड़ा व्यक्ति, सुप्त पड़ा समाज, सुप्त पड़ा राष्ट्र को जगाने की व्यवस्था को पुनर्जागरण कहा गया है। और इस तीनों को अगर आपने कर लिया तो आचरण का निर्माण है। ये आचरण के निर्माण के लिए हम लोग यहां बैठे हुए हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। कारण क्या है कि एक विश्वविद्यालय में गया, निजी विश्वविद्यालय था, तो वहां पर देखा एक बिल्डिंग का नाम बीटा, एक का गामा, एक का अल्फा। मुझे तो हजम ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो देखा कि एक का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, नीरजा भनोट, और ना जाने कितने कितने नाम, सरदार पटेल, ये नाम देखे मैंने। तो आपको भी ऐसी व्यवस्था जब आप कभी जाएंगे तो हो सकता है कि गले ना उतरे, क्योंकि मुझे गले नहीं उतरी। क्योंकि एक विद्यालय जो है वो किस तरह का हो सकता है? क्या बीटा, गामा और अल्फा पर हो, या शहीदों के नाम पर हो? इसलिए एक चेतना आपके अंदर जगा कर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने लोग हैं जो अपने दादाओं के नाम जानते हैं? हाथ उठा लो। इतने लोग जानते हैं? आप देखिएगा वीसी साहब, कितने लोग हैं जो अपने परदादाओं का नाम जानते हैं? वो आप हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो अपने लक्कड़दाताओं का नाम जानते हैं? हाथ नीचे हो गए। हाँ, उनके पिताजी। कितने लोग हैं जो उन झक्कड़ दादा के नाम को जानते हैं? नाम कम हो गए ना। ये दादाओं को, अपने राष्ट्र पितरों को, अपने राष्ट्र दादाओं को याद करने की व्यवस्था है। ये सुभारती विश्वविद्यालय का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक, आज जो है सरकार इस बात पर सोच रही है, विचार कर रही है, ये ना जाने विश्वविद्यालय में कब सोच लिया गया। जिन्होंने सेना में 35 वर्षों से अधिक सेवा की, कृपया आप शांत हो जाएं 2 मिनट के लिए। आप और बैठे, फिर उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। जिन्हें राष्ट्रपति महोदय द्वारा सेना पदक मिला, देश विदेश में सेनाओं के बहुत सारे अभियानों में आपने नेतृत्व किया, और हमारे परिवार प्रमुख परमादरणीय कुलपति आदरणीय मेजर जनरल डॉक्टर जी के थपियाल जी से अनुरोध करूंगा वो आए और आशीष वचनों से हमें सराबोर करें। परमादरणीय कुलपति महोदय, आपकी तालियों के बीच जोरदार तालियां।
सर्वप्रथम मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है सबको? एक्चुअली अभी मैं कुछ बोलना चाहूँ तो बोलने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले वक्ता जितने भी बोल चुके हैं बहुत कुछ बता चुके हैं आपको इस बारे में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का दिन मैं बहुत महत्वपूर्ण दिन मानता हूँ सुभारती में अपने लिए, क्योंकि मुझे इस संस्कृति विभाग में आने का मौका मिला और जब मैं चारों तरफ फोटोग्राफ्स देखता हूँ जिनमें हमारे सपूत क्रांतिकारी ऐसे फ़ोटोएँ हैं फ़ोटोज़ हैं जिनमें शायद मैंने एक जगह कहीं नहीं देखा। इसके लिए मैं संस्कृति विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी वक्ताओं का नाम नहीं लूँगा, सभी टाइम शॉर्ट है, तो मैं सबसे पहले इन बच्चों से निवेदन करूँगा कि बच्चों को बधाई दूँगा कि आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आप सुभारती में हैं। इस सुभारती में होना अपने आपस में एक बहुत सौभाग्य की बात है। मैं पिछले 30 से 35 साल में आर्मी में रहा और आर्मी में जनरली मैं अध्यापन से जुड़ा रहा बहुत ज़्यादा कर। मैं क्लिनिशियन भी रहा, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी मेरी स्पेशलिटी है। मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा, प्रोफेसर रहा, और वहाँ पे भी मुझे सुभारती नाम सुनाई देता था तब। और सुभारती नाम किस लिए जानते थे हम कि यदि देश प्रेम, संस्कृति और के बारे में शिक्षा दी जाती हो यूनिवर्सिटी में तो वो सुभारती है। क्योंकि हम जब इंस्पेक्शन होते थे एनसीआई के, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के इंस्पेक्शन के लिए जाते थे लोग, तो उसमें हमारे यहाँ एफएमसी से भी आते थे और वो जब मुझे बताते कि सर एक बार आप सुभारती ज़रूर जाइए और वहाँ देखिए क्या माहौल है, आपको लगेगा कि आप एक दोबारा से कैंटोनमेंट में पहुँच गए हैं, ऐसा माहौल वहाँ लगता है। तो मुझे वाकई जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि मैं दोबारा से कैंटोनमेंट में आ गया हूँ। इतना अच्छा डिसिप्लिन और इतना अच्छा वातावरण, सुंदर ग्रीन वातावरण, स्वच्छ वातावरण शायद कहीं और भी शिक्षण संस्थाओं में मिलेगा। आज का दिन दिन है शिक्षा का, और आज के दिन जिन महान पुरुषों को हम याद कर रहे हैं उनके बारे में बता चुके हैं मेरे पूर्व वक्ता, तो मैं उनके बारे में बताना ज़्यादा नहीं चाहूँगा। मैं शिक्षा के बारे में बच्चों से कुछ बात करना चाहूँगा। शिक्षा से मतलब आप क्या समझते हैं? इससे पहले शिक्षा का मतलब आइंस्टाइन ने कहा था, इट इज़ नॉट द लर्निंग द डेटा, it is not mucking the data or writing the data, it is training the mind to think। दिमाग को सोचने के लिए तैयार करना शिक्षा का महत्व है। मतलब आप अपने सिलेबस में जो भी पढ़ते हैं, वो जो पढ़ते हैं वो किसी लोगों का काम किया हुआ उसको पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस काम को आप उसी तरह से पढ़ लें और उसी तरह से ढाल लें, है ना। आपको ज़रूरी है कि अपने दिमाग से सोचें और अपने को दिमाग को सोचने की प्रवृत्ति डालें। किसी भी काम को करने से पहले आप अपने दिमाग को ज़रूर उस पर लगाएं। याद करने की और रटने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ज़रूरत होती है क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना होता है और पास होना होता है, लेकिन एक आदत ज़रूर डालिए, जब भी आप पढ़ें तो उस पर मनन ज़रूर करें। क्यों? अब मैं शिक्षा के 3 स्तंभ बताना चाहता हूँ। आपके 3 स्तंभ क्या? 3 तरह की शिक्षा यदि दर्शन शास्त्र में देखें तो 3 तरह की शिक्षा कही जाती है। एक शिक्षा है जिसको कहते हैं नेचुरलिज्म, एक है आइडियलिज्म और एक है प्रैग्मेटिज्म। 3 आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, 3 है।
तो आइडियलिज्म क्या है? स्पिरिचुअल एजुकेशन इज आइडियलिज्म, जिसको कि हम आइडिया मानते हैं कि भगवान है, स्पिरिट है, सुप्रीम स्पिरिट है और हम उसके छोटे से अंश हैं। अंतिम हमारा उद्देश्य है इस स्पिरिट को उस स्पिरिट से मिलना है, एब्सोल्यूट स्पिरिट से मिलना है। यह है आइडियलिज्म, यही शिक्षा थी। और ये शिक्षा हमारी ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान तप से प्राप्त की थी। तो ऐसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कौन सा ज्ञान जरूरी है? जो कि आपको तप से मिलता है, जो आपको योग से मिलता है, जो आपको त्याग से मिलता है। त्याग तप से आपको मिलता है ये ज्ञान। दूसरा ज्ञान है, जो लोग इस पे विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे कि ये तो हमने देखा ही नहीं, भगवान कौन है, स्पिरिट कौन है, कहाँ है, क्या है, इसके बारे में हम जानते नहीं, तो क्या ज़रूरत है इसको जानने की। तो दूसरा सिस्टम है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म कहता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। तो जो हमको ज्ञानेंद्रियाँ हमको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी से ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नेचर, प्रकृति ही सबसे बड़ा टीचर है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप सीखता है कैसे चलना है, कैसे क्रॉल करना है, कैसे बात करना। ये नेचुरलिज्म है। तो नेचुरलिज्म दूसरा एस्पेक्ट। अब तीसरा आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि आपको शिक्षा किसी और के द्वारा ग्रहण करनी है और प्रैक्टिकल होना है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपने कुछ कमाना है, नौकरी करनी है या कुछ ऐसा व्यापार करना है या कुछ चलाना है, तो आपको अपने को जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। उसके लिए आपको शिक्षा प्राप्त करनी है। और ये शिक्षा, प्रैग्मेटिज्म शिक्षा आई थी अमेरिका से, लेकिन वो कंप्लीटली मटीरियलिस्टिक है। अब हिंदुस्तान की शिक्षा देखिए कितनी अच्छी है। इन तीनों को मिला लो तो हमारी हिंदुस्तान की शिक्षा बनती है। आप नेचुरलिज्म को ले लो, आइडियलिज्म, तो हमारी जो शिक्षा है वो स्पिरिचुअलिटी की भी है, रिलीजन की भी है, नेचुरलिज्म की भी है और प्रैग्मेटिज्म की भी है। तो शिक्षा का उद्देश्य अब क्या हुआ? माइंड को ट्रेन करना, थिंक करने के लिए, उसके बाद अपने जीवन को चलाने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना और जीवन की कठिनाइयों को झेलने के लिए तैयार रहना। ये शिक्षा का उद्देश्य आज के डेट में हमारा होगा कि जीवन की समस्याएं जो हमारे पास आएंगी उनको फेस करने के लिए हम तैयार कैसे हों, वो आपको आज की शिक्षा बताती है। और जो यहाँ आप कर रहे हैं वो आपको ट्रेन किया जा रहा है उसके लिए कि कल आपके जीवन में ये समस्याएं आएंगी। अब जिस तरह से नॉलेज बढ़ता जा रहा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है ना, तो ज्ञान सबसे बड़ा वेपन हो गया आज। जिसके पास ज्ञान है वो सबसे बड़ा पावरफुल है ना। तो आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन के साथ अपने को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं और अपने आप को सक्षम बना रहे हैं कि कल जिंदगी में जो भी आए, जिस तरह की भी समस्याएं आए, हम उसको झेल सकते हैं। और साथ साथ सुभारती आपको सिखा रहा है, इसके साथ साथ मटीरियलिज्म के साथ साथ कभी ये मत भूलिए कि आपकी नैतिक वैल्यूज़ क्या हैं। उन नैतिक वैल्यू को आप ज़रूर याद रखिए। वो सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, एक पंख पे पक्षी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है ना। उसी तरह से मनुष्य के भी दो पंख हैं, एक मटीरियलिज्म का पंख है और एक स्पिरिचुअलिटी का पंख है। यदि आप मटीरियलिज्म का पंख बहुत तगड़ा हो जाए, बहुत ताकतवर हो जाए, थोड़ी देर उड़ेगा वो पक्षी, लेकिन गिर जाएगा यदि वो स्पिरिचुअलिटी का पंख मजबूत नहीं है। तो इस शिक्षा में जो आपको दी जा रही है, ये शिक्षा स्पिरिचुअलिटी की भी शिक्षा है, नेशनैलिटी की भी शिक्षा है, पेट्रियाटिज्म की भी शिक्षा है, ताकि आपका दूसरा विंग बहुत ताकतवर हो जाए। और मटेरियल विंग को आपको तो करना ही है। जब आप शिक्षा ग्रहण करके बाहर मार्केट में जाएंगे तो अपने मटेरियल विंग को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज की शिक्षा में आपने
इसको तैयार करना है अपने एक विंग को, और उसके बाद दोनों विंग आप, जब आपके दोनों पंख तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, तो आप आकाश की किसी भी ऊंचाइयों में उड़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होगी आपके लिए। लेकिन ये दोनों पंख आपको तैयार और मजबूत करने हैं, और उस मजबूती को करने के लिए हमारा संस्कृति विभाग बहुत मदद कर रहा है आप लोगों को। आप लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना दे रहा है, आप लोगों के अंदर एक नैतिकता की भावना भर रहा है, आप लोगों के अंदर एक वैल्यू सिस्टम डाल रहा है कि आप अपने संस्कृति से, अपने पुराने संस्कृति से जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है उसको ना छोड़ें, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा वही है। ठीक है ना? तो इन्हीं विचारों के साथ, मैं समय कम है तो मैं जाना चाहूँगा, और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज के शिक्षा दिवस के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि खाली मेरा संबोधन ही न रह जाए, आप इसको मनन करें, जाके सोचें इसके बारे में कि सर ने क्या कहा और कितना मेरे लिए प्रैक्टिकल है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, या हम फालतू की बकवास कर गए सर, वो तो मटीरियलिज्म, जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगा, बंगला नहीं मिलेगा, क्या ज़िंदगी है, ऐसे कोई ज़िंदगी है? तो ये सब चीज़ें आपने सोचना है, और फ्यूचर में यही दो पंख आपके काम आएंगे। चलिए, धन्यवाद विवेक जी। माननीय कुलपति महोदय जी और हमारे गुरुजन, गुरु माताएं, प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज जिस तरह शिक्षा के लिए शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, सुभारती दिवस मनाया जा रहा है, अपने शहीदों को याद किया जा रहा है, अपने महापुरुषों को याद किया जा रहा है, मैं भी अपनी तरफ से सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और पहले ये कार्यक्रम जो इतना सुंदरतम संजोया गया है संस्कृति विभाग की तरफ से, मैं संस्कृति विभाग के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ खुद को बुलाने के लिए, और विवेक संस्कृति जी का विशेष आभार, क्योंकि आपके पास शिक्षा हो सकती है, बुद्धि सभी के पास होती है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन विवेक का अभाव पाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी का, इस विभाग का सौभाग्य है कि इनके पास विवेक है। क्यों कि ये विवेकानंद यूनिवर्सिटी का जो उद्देश्य है, ये बहुत गहरा संबंध है इस चीज़ का कि यहाँ कौन लोग कार्यरत हैं। कुलपति जी ने बहुत अच्छा बताया, उससे पहले माननीय हमारे नीरज जी ने और वैभव जी ने बहुत ही सुंदर, मैं तो आज मुझे बचपन याद आ गया अपना, एक वरिष्ठ छात्र की तरह काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। मैं अपनी कुछ कविता के माध्यम से दो चार बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि इनके बाद ऐसा कुछ नहीं बच जाता, बस ये समझ सकते हैं कि मैं उस बात को कविता में कह रहा हूँ और गुरुजनों ने वो बात अपनी उसी तरीके से बताई है जैसे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बताई जाती है। मुझे याद आ रहा अपना बचपन, ये चार पंक्तियाँ मंच का आशीर्वाद चाहूँगा, कुलदीप भाई ने बहुत अच्छा ज्ञान आपको दे दिया। मैं चार पंक्तियाँ मैं भी शहीदों के बारे में बताऊँगा, मुझे बहुत कम समय मिला हुआ, आप जल्दी से जल्दी मेरे से जो लेना है उसे ग्रहण कर लें, जैसा कुलपति जी बोल गए, क्योंकि बाहर खिचड़ी भी ठंडी हो रही है। और यह पंक्तियाँ ये थी कि रिमझिम बरसने वाला सावन तलाशता हूँ, मुझे बचपन में याद आ गया, आशीर्वाद चाहूँगा सिम्मी जी। रिमझिम बरसने वाला सावन तलाशता हूँ, पनघट पे हंसने वाला यौवन तलाशता हूँ, वो गांव खेत नदिया बागों में पाठशाला, पगडंडियों पे अपना बचपन तलाशता हूँ। और क्यों ना तलाशूं, आपकी तरह कौन चाहता मेरी तरह बुढ़ा होना, सभी यही चाहते हैं कि भाई हमारा बचपन या हमारा किशोरावस्था ही रहे।
तो कितने आनंद रहते हैं। तो इसकी भी 4 पंक्तियाँ थी कि हे राम जिंदगी में बस प्यार प्यार देना, हे राम जिंदगी में बस प्यार प्यार देना, उपकार त्याग सेवा जीवन में सार देना, होठों पे मुस्कुराहट जो सबकी ला सके हम, घर हो सके तो फिर से बचपन उधार देना। मैं इस टाइप का कवि हूँ। उस टाइप की 4 पंक्ति देखें कि अन्याय के आगे ये सर झुकने नहीं दिया, अन्याय के आगे ये सर झुकने नहीं दिया, हमने ज़मीर को कभी बिकने नहीं दिया, आया ख्याल कई दफ़ा चुटकुले लिखूं, इन बिगड़ी व्यवस्थाओं ने लिखने नहीं दिया। क्योंकि जैसा विवेक जी ने बताया कि भूतपूर्व सैनिक भी हूँ और संधा सेनानी का पुत्र भी हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक परिचय में है ये कि लड़ चुका है कि युद्ध में भी, क्योंकि 71 का युद्ध लड़ा, उसे ध्यान में रख के देखें कि लड़ चुका है कि युद्ध में भी देश प्रेमी वीर हूँ, मैं ही शेखर और तिलक की बोलती तस्वीर हूँ, पर कहाँ से लाऊं अब अशफाक अब्दुल बोलिए, देश जातों में बटा है इसलिए गंभीर हूँ। शिक्षा की बात चल रही थी बच्चों, शिक्षा कितनी अनिवार्य है आप देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। मैं इतना पढ़ने के बाद भी आज मेरी स्थिति वही है जो आपकी है, लेकिन आज जैसे इस तरह की बातें सुनी हैं ये बड़े भारी। अब जैसे हमारे कुलदीप नारायण जी हैं, इनका इतना विस्तृत ज्ञान है आप सोच नहीं सकते। जैसे ये बचपन में हमारे विवेक जी राष्ट्रपति जी ने सम्मानित कर दिया था, इतने कैडे वैज्ञानिक रहे हैं मेरठ कॉलेज के पुराने, और ये साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं। और मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ, इसलिए मैं और भी अति प्रसन्न हो जाता हूँ कि शुभारती में खड़ा हूँ और संस्कृति विभाग में खड़ा हूँ, और विवेक जी मुझे कभी समझते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए नहीं हो सकती। इनके लिए तालियां बजा दो। शिक्षा की बात आई, मैं 4 पंक्ति पढ़ूंगा सब गुरुजनों को आशीर्वाद लेते हुए कि रहबर का मतलब है मार्गदर्शक। अगर रहबर मिला होता तो उसके साथ बढ़ लेता। देखिए परेशानी क्या, तुम लोग तो शुभारती में पढ़ रहे हो, हम तो वहाँ नंगे पैर जाते थे बाग में पढ़ने में, प्राइमरी स्कूल में, जैसा मैंने 4 पंक्ति में बताया। अगर रहबर मिला होता तो उसके साथ बढ़ लेता। नमन करना चाहूँगा कि ये सत्य घटना है। ताली बजा दो इस बात पे जोर। शहीदों को नमन करना चाहूँगा। आप मुझे इशारा दे देना कि अगर, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरा तो 10-20 मिनट में तो मुझे पता लगता है बच्चों क्या क्या सुनाना चाहिए। अच्छा, जहाँ 5-10 मिनट का ही समय मिला हो वहाँ ये तय नहीं कर पाते कि ऐसे मैं कुलपति जी की बातें करूं या गुरुजनों की तारीफ करूं या इस विभाग की या विवेक जी की, या अपना परिचय देने लगूं जो 1.25 घंटे में ख़त्म नहीं होगा। तो बच्चों के लिए मनोरंजन भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के बाद ही सारी चीज़ें हैं। क्यों? अगर शिक्षा नहीं होगी तो क्या दिक्कत आती है वो देखें 4 पंक्ति में। क्योंकि जब शिक्षा के साथ ही संस्कार जुड़े हुए हैं, अपनी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, अपने रिश्ते जुड़े हुए हैं। एक पीड़ा की 4 पंक्ति याद आ गई, एक आध पंक्ति अच्छी वाली भी सुना दूं। वो ये थी कि रियासतों की सियासतों में, ये मेरी पीड़ा, रियासतों की सियासतों में चरागे उल्फत जला रहा हूँ, रियासतों की सियासतों में चरागे उल्फत जला रहा हूँ, मुझे खबर है बड़ा है मुश्किल मिलाना, फिर भी मिला रहा हूँ। सियासतों की रियासतों में 4 पंक्तियाँ, चरागे उल्फत जला रहा हूँ, मुझे खबर है बड़ा है मुश्किल मिलाना, फिर भी मिला रहा हूँ। पड़े हैं बिखरे सड़क पर रिश्ते, पड़ी हैं टूटी परंपराएं, मैं अनमना सा सिसक रहा हूँ, उन्हीं की किरचें उठा रहा हूँ, उन्हीं की। तो अशिक्षा में क्या दिक्कत आती है कि संस्कारों, आपने पहले कभी, हमारे ज़माने में वृद्धाश्रम नहीं होते थे, ये सब आप लोगों के ज़माने में हुए हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कारों
संस्कारों के अभाव में दिक्कत है। शिक्षा का अभाव, संस्कारों का अभाव। संस्कारों को तो घर से निकाल रखे हैं, अपने माँ बाप आश्रम में डाल रखे हैं। यूं तो देते हैं दुआएं वो वहीं से बैठे, फिर भी रक्षा के लिए कुत्ते पाल रखे हैं। इसलिए आवश्यक है बच्चों के लिए कि बच्चों को शिक्षा दो, संस्कार दो, सद आचरण तो दो। शिक्षा दो, संस्कार दो, सद आचरण तो दो। अपनी परंपरा का इन्हें व्याकरण तो दो। अवधेश बन के देखिए, एक बार ही सही, बन जाएंगे ये राम भी, वातावरण तो दो। तो वातावरण मिलना, वातावरण का मतलब है कि वातावरण अगर कहीं मिलता, कुलपति जी बहुत अच्छी बात कह गए, सब जगह आप घूम लो पूरे में, लेकिन इस तरह का आपको वातावरण कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह का यहाँ है। ये हरियाली, ये अनुशासन, ये साफ सफाई, बहुत चीज़ें हैं। स्वच्छ भारत का अगर नमूना लेना, ग्रीनरी का लेना, तो कोई सुभारती से ले। और यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कभी उस ज़माने में गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी, जब स्वामी ब्रजानंद हुआ करते थे और स्वामी दयानंद पढ़ा करते थे। और आज की स्थिति क्या है? आज स्थिति में ये भी बड़ी समस्या है कि कहाँ मिलती है जीजाबाई सी माँ, कहाँ मिलती है जीजाबाई सी माँ। शिवाजी जन्म लेना चाहते हैं और कहाँ गुरु अब हैं रामानंद जैसे, कबीरा कितने बनना चाहते हैं। शहीदों को नमन करना चाहूँगा कि जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, झेले हैं बड़े जोखिम फौलादी छातियों पर, कैसे उन्हें भुला दें, थे देशभक्त सारे, आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर, उनकी समाधि। आज वही दिन है, बाबा दीप सिंह हो या तेग बहादुर जी हो, हमारे बड़े महागुरु, और ऐसे ही कलाम साहब, और एक और कलाम अभी पीछे आपने देखे होंगे जो बहुत कुछ दे गए देश को, मिसाइल मैन। तो ये हमारा देश बड़ा विचित्र है, बड़ा विविधताओं का देश है, और उसमें ये सुभारती है। ये बहुत वाकई एक स्पेशल ऐसा, जब भी कभी मुझे फ़ोन आता तो मैं कभी इतनी जल्दी ससुराल के लिए तैयार नहीं होता था जितनी जल्दी विवेक जी के फ़ोन पर मैं यहाँ को चल पड़ता हूँ। मैंने कहा चलो भाई बच्चों से थोड़ी थोड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को ही तो बताने वाली बात है। ये तो सब गुरुजन हैं, इन्हें तो पता ही है, ये तो उधर से निकल कर आए हैं। तो आज शहीदों को नमन हुआ है। 4 पंक्ति और नमन की पढ़ना चाहूँगा कि देख रहा हूँ आज बैठकर मैं उनकी तस्वीरों को। यहाँ ये बहुत वातावरण बन गया इन 4 पंक्तियाँ, लेकिन इसकी जड़ में ये बात है कि हम शहीदों को नमन तो करते हैं, उधर हमारा ध्यान कम जाता है कि वे भगत सिंह अपने आप थोड़ा भगत सिंह बन गए। माता पिता का एक परिवार में वातावरण रहा होगा, देशभक्ति का एक वातावरण था। कोई वैसी जगह फांसी थोड़ा चढ़ जाता, चाहे चंद्रशेखर जी को कहो या आज़ाद को कहो, कोई भी, तो एक वातावरण, तो उसमें याद करने की किसे ज़रूरत है, वो ये 4 पंक्ति बताएंगी। इनको तो नमन है ही कि देख रहा हूँ आज बैठकर मैं उनकी तस्वीरों को, जो आज़ाद कराए माँ को, तोड़ दिए जंजीरों को। उम्र भले ही कम थी उनकी, देशभक्त वो पूरे थे। नमन करूं मैं उन माँओं को जो जन्मी उन वीरों को। समाज की मैं विसंगतियों का कवि हूँ, जो ज्वलंत मुद्दे हैं। जिस तरह बेटी को गर्भ में मारा जा रहा है, तो मैंने बहुत बार इसके ऊपर काम किया है। अब जब मैं आया हूँ तो एक 4 पंक्ति ये भी ले लें आप। बेटियाँ देख रहे हैं हमारे सामने बैठी हुई हैं, कितना एक वातावरण बना हुआ। बेटी के लिए लोग कहते हैं जी कि भ्रूण हत्या हो रही है जी, बेटियों का ग्राफ गिर रहा। बेटियों का ग्राफ नहीं गिर रहा, आपकी सोच और आपकी मानसिकता बदल रही है। पहले उसी की 4 पंक्ति ले लो कि आँख खुशियों से हमारी कर रही नम बेटियाँ, आँख खुशियों से हमारी कर रही नम बेटियाँ, हर जगह फहरा रही हैं अपना परचम बेटियाँ। अपनी बेटी देखता हूँ आज हर बेटी में मैं, कौन कहता है जहाँ में हो रही कम बेटियाँ। बेटियों का कोई अभाव नहीं है।
एक बार तो मैंने यहाँ तक लिख दिया था बेटियों के स्नेह में आकर कि भ्रूण हत्या तो करा दी कि शायद गुनाह अपना उसे याद नहीं है, शायद गुनाह अपना उसे याद नहीं है, इस पाप की ऊपर कहीं फरियाद नहीं है। जब से कराया कत्ल वो कन्या का गर्भ में, उस घर में आज तक कोई औलाद नहीं। जब मेरी पुस्तक बेटी से कल का भारत है, इसका विमोचन वहाँ माननीय स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने किया, ये भी एक महीना रिकॉर्ड तोड़ा था भारत का, ये संसद में हुआ था विमोचन। तो मैंने ये 4 पंक्तियों ने सुनाई कि सरकार तो जो कर रही है बेटी के लिए कर ही रही है। कभी और ज़्यादा भावुक होता, बहुत चिंतित होता है इन चीज़ों के लिए। हम जान दे सकते हैं लेकिन अपनी बेटी का भविष्य खराब नहीं कर सकते। आप किसी नज़रिए से सुने इस पंक्ति का आनंद लें। मंच का आशीर्वाद चाहूँगा। मैडम बैठी हैं, मैडम को आपने सुना है, मैं खुद हैरान हूँ। हालांकि मैं हिंदी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन भाषण इंग्लिश में था, लेकिन भावनाएं और एक्सप्रेशन से मैं समझ गया कि ये कोई ना कोई काम की बात बता रही हैं और मुझे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जैसे ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये 4 पंक्ति थी कि जन्म धरती पे लिए हैं जो सभी मरने हैं। सच्ची पंक्ति है नहीं, ये बताओ। जन्म धरती पे लिए हैं जो सभी मरने हैं, जख्म दुनिया ने दिए हैं जो अभी भरने हैं। ऐ मेरे दोस्त, मेरा कत्ल सोचकर करना, हाथ पीले अभी बेटी के मुझे करना। मुझे कोई सुनवाना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं माइक पर आ जाता हूँ तो मजबूरी हो जाती है कि यार बात तो ठीक कह रहा, सुनने में थोड़ी बहुत देर क्या बुराई है, क्योंकि मैं भी 50 साल से इसी काम को कर रहा हूँ। और मेरे गाने आप बॉलीवुड में, बॉलीवुड में जितनी भी कंपनियां टी सीरीज से लेकर विंग्स तक और आपके सारे गामा पा और ये कंपनियां जितनी भी हैं बड़ी, इन सब में मेरे भजन बज रहे हैं। आप जब भी डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर 7वां विंग्स डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी इतनी बड़ी विस्फोट हो गया जी, 2 करोड़ 80 लाख व्यूवर मेरे जैसे कवि के। और मैंने लिखा क्या था, यह शिव की वो थी अमृतवाणी, आधा घंटे की। पामीला जैन ने ये गाई थी। पामीला जैन का मतलब है कि भजन टेरिटरी की लता मंगेशकर ही है वो, विंग्स कंपनी में। तो मैं सुन के, मुझे लड़के ने ढूंढ नाट का बताया कि पापा जी तुम भी ठीक ही काम कर रहे हो। मैंने कहा वो कैसे? यार 2 करोड़ 80 लाख। और ये जब की बात है, 20-25 दिन पहले अखबार ने भी निकाला था कि हमारे शहर में एक ऐसा कवि भी रहता है। आज की स्थिति जो हो रही है ये सुभारती की नहीं है, लेकिन देश की स्थिति जो है। मैंने कुलपति जी को यूनिवर्सिटी में भी, यह भी पुस्तक का विमोचन था मेरा, सुलगती धरती, तो पर्यावरण की पुस्तक थी। मैंने वहाँ भी कहा था कि भाई ये बहुत पीड़ा का विषय है कि जलता हुआ गांधी का वतन देख रहा हूँ, जलता हुआ गांधी का वतन देख रहा हूँ, पुस्तक की जगह हाथ में गन देख रहा हूँ। कैसे विवेकानंद बने कल कोई बच्चा, पीढ़ी में चरित्रों का पतन देख रहा हूँ। ऐसी बहुत चीजें हैं जो सुभारती में हैं। जिस तरह ये है कि आस्था और श्रद्धा घट रही हैं, आस्था और श्रद्धा घट रही हैं, पीढ़ियां संस्कृति से हट रही हैं। चले आओ कन्हैया चक्र लेकर, तुम्हारी रोज गैया कट रही है। सब पर ध्यान देना होगा मैं, क्योंकि तुम्हारा आने वाले भारत मेरे सामने बैठा, आपको सब पर ध्यान देना होगा। पुस्तकों को लोग कहते हैं, कभी 4 पंक्तियां लिख दी थी कि अस्त्र हैं पुस्तकें, शस्त्र हैं पुस्तकें, यत्र हैं पुस्तकें तत्र हैं पुस्तकें। पुस्तकों में ही लिपटा है जीवन मेरा, पहनता हूँ जिन्हें वस्त्र हैं पुस्तकें। पढ़ाई बड़ी आवश्यक है। मुझे आप पढ़ने की क्या जरूरत है? जिस आदमी की 26 किताब निकल गई, 26 तो रचना भी नहीं मिलेंगी तुम्हें 26 कवियों के पास। क्यों अध्ययन के लिए और नीचे जाना पड़ता है। चलिए, मैंने कहीं ऐसा ना हो आपका अधिक समय तो नहीं ले लिया हो, तो मैं फिर ये थोड़ा सा इसे समाप्ति की तरफ बढ़ा दूँ। बेटी के लिए और मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि निराशा में घिरी है, निराशा में घिरी है आस दे दो, निराशा में घिरी है आस दे दो, घुटन में है
खुली अब सांस दे दो, और जो बेटी चाहती है आज उड़ना, उसे पूरा खुला आकाश दे दो। अब अंत में मैं दो बात कहा करता हूँ, वो आज फिर कहूँगा। पहली 4 पंक्तियाँ लड़कों के लिए है, वो ये वाली हैं कि देश हित में हम करेंगे काम सब। ज्ञान अलग है, तफरीबाजी अलग है। देश हित में हम करेंगे काम सब, आओ बन जाएं इसी सौगंध से। देश हित में हम करेंगे काम सब, आओ बन जाएं इसी सौगंध से। आज के दिन सब यही संकल्प लें, हम बनेंगे कल विवेकानंद से, हम बनेंगे कल विवेकानंद। और 4 पंक्ति बेटियों के लिए कुलपति साहब ने कहा था ना कि भी लेके जाओ कुछ यहाँ से, वैसे ही नहीं। बहुत से आदमी, एक बार आनंद स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे जी, और बेतुकी भीड़ जो है प्रवचन सुन ली। जब खत्म हो गया और सारे आदमी उठ के चल दिए। अब 2 आदमी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े और अपना दूर खड़े हुए अपना कर रहे बातचीत। स्वामी जी ने कहा कि भाई दुनिया चलेगी, ये कहाँ उलझे हुए हैं। तो स्वामी जी ने एक बात कही थी अपने भाषण में कि आज आप ये प्रवचन सुनने आए हैं तो कोई भी एक बुरी आदत छोड़ कर जाए। उसमें बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा, झूठ, सच सब चीज़ हो सकती हैं, कुछ भी एक। तो उन दोनों को स्वामी जी ने बुलाया। यूँ भी बहुत देर रुक गए लोग, तो यूँ हाँ भाई कौन हो तुम? यूँ जी हाँ यहीं रहते हैं हम भी। यूँ आपने सुना प्रवचन? यूँ हाँ जी सुन लिया। यूँ तो भाई देखो जब तुम रह गए हो तो मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा, तब तो मैं मंच पर था जब सब थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ना कोई अपनी बुरी आदत छोड़ कर जाओ। कहने लगे आप स्वामी जी ये ना समझे कि हमने आपका भाषण नहीं सुना, हम कोई ना कोई जरूर छोड़ेंगे चीज़। क्या छोड़ोगे? मुझे सत्संग ही छोड़ कर जा रहे हैं। तो बेटियों के लिए अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि ये उम्र ही ऐसी है, चलना संभल संभल के। ये उम्र ही ऐसी है, चलना संभल संभल के। मिलते हैं लोग अब तो चेहरे बदल बदल के, और रिश्तों के गांव में भी जंगल है वासना के। रिश्तों के गांव में भी जंगल है वासना के। आँखों से गिर न जाएं सपने तुम्हारे कल के, आँखों से गिर न जाएं सपने तुम्हारे कल के। मैं एक बार फिर विवेक भाई का आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने बता दिया कि इस यूनिवर्सिटी का सौभाग्य है कि इनके पास विवेकी आदमी है, विवेक। और आप रोज़ देखते भी होंगे यहाँ क्या स्थिति बना दी है। ऐसे ही कुलदीप भी हैं, वो कुलदीपक सब नाम रखते हैं कुलदीप, और नारायण ऊपर से हैं। और कोई इधर उधर की हरकत हो तो सिंह भी हैं, और शर्मा भी बेशक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह के लोग जो काम चल रहे हैं उनके लिए है। तो आप सभी के लिए 4 पंक्तियां हैं कि ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, याद आते रहो, रह न जाए अंधेरा कहीं दूर तक, बस मोहब्बत के दीपक जलाते रहो, और मोहब्बत के दीपक जलाते रहो। जय हिंद, जय भारत। अगर कभी फिर अवसर मिला तो मैं आपको और बहुत कुछ सुनाऊंगा। नमस्कार। अभी आप 2 मिनट बैठे 2 मिनट बैठ जाए। वंदे मातरम के बाद जाएंगे, बैठे। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दें भाई, बहुत ही सुंदर। वास्तव में एक दिन केवल हम आप ही का कार्यक्रम रखेंगे विभाग में, और हम बच्चे जो इस तरह की साहित्य की रुचि लेते हैं उन सबको बुलाएंगे। बहुत जल्द मैं ये कार्यक्रम अनुरोध करूंगा कुलदीप नारायण जी से डिज़ाइन करें कि इतने जिनकी 26 किताबें विमोचित हो चुकी, हम मेरठ कॉलेज में जिनकी किताबें पढ़कर हमने लिखना सीखा, CBSE में जिनकी कविताएं चलती हैं, जिनकी बहुत सारी फिल्मों में गाने हैं, मैं पुनः विभाग की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से आपकी तालियों के बीच उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बाहर हमारे मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा प्रसाद वितरण का आरंभ किया जाएगा। आप लोग पंक्तिबद्ध जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुलदीप जी से अनुरोध करूँगा वो आए, वंदे मातरम में सबको शामिल करें। आप सब खड़े हो जाएं, वंदे मातरम। वंदे मातरम के लिए सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे
मातरम। शुभ्रे ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की जय।